Jai Hind students. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6, Work, Power, Energy of your NCERT textbook. So I am your physics teacher. Till now what we have studied is, first chapter is the physical world, second chapter is units and measurement. First is physical world, second is units and measurement, third is motion in one dimension or motion in a straight line, fourth is motion in a plane. Here it was a plane, here is a straight line. यहाँ तक पढ़ने के बाद आपने पढ़ा लॉज ऑफ मोशन. नाउ अब इन सारे चैप्टर्स को, इनफैक्ट अगर मैं बी प्रिसाइज होकर के कहूँ, सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन एंड लॉज ऑफ मोशन, दे ऑल टुगेदर कंबाइन एंड फॉर्म अ न्यू चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड एज वर्क, पावर एंड एनर्जी. सो इस चैप्टर में हमें करना क्या है, आगे देखते हैं. सबसे पहले हमें ये डिफ़ाइन करना होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय द वर्क. एक्चुअली वर्क इज़ नॉट जस्ट लाइक कि जैसा हम उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. हमने एक गिलास पानी लिया और उसको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर रख दिया, तो हमने डेली लाइफ में कहा कि ये हमारे लिए वर्क है. बट इन फिजिक्स इट इज़ नॉट काउंटेड एज लाइक दैट कि नॉर्मल लाइफ में आपने जैसे काउंट किया हुआ है. ओके, so in terms of physics, the definition of work is application of force through a distance. When you have applied a force and by the application of that force, your object is being displaced from one place to the another place, or it has moved with some displacement, that is called as work. And that is mathematically I can write it as the force is equals to work is equals to force into displacement. Actually here is a mathematics, just see it. Work is equals to force into displacement. I am denoting displacement by d, but you have to take a dot product. Why? अब डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वेक्टर में बहुत डिटेल में बात की है. इनफैक्ट क्लासेस भी कंटिन्यूसली इसकी लगभग 5 to 6 क्लास तक जो है मैंने डिस्कस किया आपके. तो आपके पास फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, डिस्प्लेसमेंट d इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड when you are going to multiply vector by vector, you have two options. First, either you will get as a vector quantity, and second option is the either you will get a scalar quantity. What the point? So हमने वर्क को निकालने के लिए हमने कहा कि आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए या आप उसका प्रोडक्ट लीजिए. You have to take a product of force and displacement, and the dot product should be such that it will give you a scalar quantity. Dot product is being used to get as a scalar quantity when two vectors are being multiplied. ये बात है. तो मतलब इस सारी बात का मैं अगर एक लाइन में आपको समरी दूं तो ये है कि आपके पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज अनदर वेक्टर क्वांटिटी, एंड यू आर टेकिंग अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर क्वांटिटीज एंड द वर्क is obtained as a scalar quantity. ठीक. Now W is work done, F is the force applied, D is the distance through which the force acts, or better I can say that it's a displacement. Now the important point is this one. Only the force that acts in the direction of motion counts towards work. मतलब आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, if the direction of force and the direction of displacement are same in the direction, then only your work will be considered or work should be done. It can be said like this way. आप फोर्स कहीं और लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज दी वर्क इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स में थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं.
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्क एज अ स्केलर प्रोडक्ट। क्या मतलब है इसका? इफ अंडर अ कांस्टेंट फोर्स F the object displaced through a distance of d, then the work done by the force is given by W is equals to F dot d, and you know very well that when dot product is being used while expanding it, you expand it like this way. F dot d could be written as F d cos theta, like this way. Okay, so F d cos theta means आपने डॉट प्रोडक्ट को रिमूव किया, एफ डी कॉस थीटा। ये सिमिलर कुछ वैसा ही है जैसे मैं आपको याद दिलाऊं। सपोज देयर वाज टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आप इसको प्रोडक्ट करने के दो तरीके थे, इधर यू कैन टेक ए क्रॉस बी एंड द नेक्स्ट वे वाज ए डॉट बी। डॉट का सिंबल नहीं बन पाएगा तो आप उसको समझ जाइए। जब आप ए क्रॉस बी को इसको ओपन करते थे तो यू विल गेट एज ए बी साइन थीटा, और जब आप ए डॉट बी को ओपन करते थे सो इट कम्स टू बी ए बी कॉस थीटा। ठीक, ए बी साइन थीटा एंड ए बी कॉस थीटा। तो यही अंतर है। मतलब आपका जो वर्क डन है वो मैंने अगर यहाँ पे लिखा एफ डॉट डी विच मीन्स एफ डी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब एक और बात है यहाँ पर, एक मिनट। सपोज करिए आप, there is a vector A, here is the vector B, and there is an angle between theta when they are joined tail to tail. Can I write, अच्छा ये बात तो मुझे पता है कि W इज इक्वस टू एफ डॉट डी है, तो मतलब एफ डी कॉस थीटा मैंने लिख दिया। ठीक, अब मुझे लिखना क्या है, मुझे दो तरीके से लिखना है और इसका मतलब क्या है ये बहुत अच्छे समझना। पहला, मैंने एफ कॉस थीटा को साथ में रखा और ब्रैकेट लगा करके डी को बाहर कर दिया, एफ कॉस थीटा डी, एंड दूसरी बार मैंने एफ को बाहर रखा और डी कॉस थीटा को मैंने अंदर रखा, एक ब्रैकेट लगा करके छोड़ दिया। क्या ये दोनों सेम चीज़ें लिखी हुई हैं या दोनों अलग अलग हैं? अगर अलग हैं सो इन व्हाट टर्म्स दे आर डिफरेंसिंग बिटवीन ईच अदर, एंड इफ दे आर सेम व्हाट डू यू मीन बाय दैट ऑल्सो? दिस इज़ माई क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर दैट। सो यू कैन आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मैं उसको देखूंगा, पर अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, देखिए, आई एम सेइंग दैट कि लेट्स से देयर इज़ अ सूटकेस ऑन विच एफ फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग इन दिस डायरेक्शन। भाई यही तो होता है। फोर्स आप कैसे निकालते हैं इसका? एक हैंडल ऊपर होता है, वो फोर्स आप उसको पकड़ के ऐसा खींचते हैं, सो वो किसी एंगल पर काम कर रहा है आपका फोर्स। लेकिन जो रियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कुछ ऐसा होता है, लीनियर फॉर्मेट में। ठीक, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं फोर्स का कौन से कंपोनेंट से खींच रहा हूँ तो आप मुझसे कहेंगे कि सर आप इस फोर्स का यहाँ पर प्रोजेक्शन ले लीजिए। यू विल गेट एज एफ कॉस थीटा एंड दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक दिस सूटकेस मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। या फिर इसको समझने का दूसरा तरीका भी है। तो जो मैंने अभी बताया उस केस में आप क्या लिखते हैं, एफ कॉस थीटा वॉज द कॉम्पोनेंट ऑफ दैट फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग दी सूटकेस। तो आपने ये लिखा, वर्क डन अभी भी हो रहा है। W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी वेर एफ डी कॉस थीटा। एफ का कॉस कॉम्पोनेंट हमने लिया जो डिस्प्लेसमेंट के इस डायरेक्शन में था, एंड द सेकेंड वन इज़ बेटर आई कैन से कि इस डी का डिस्प्लेसमेंट का मैं वो कंपोनेंट लूँगा जो फोर्स के साथ अलाइन है। मतलब इस डी का अगर मैं वेक्टर प्रोजेक्शन ले रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, इट कुड बी टर्म्ड एज डी कॉस थीटा। सो डी कॉस थीटा क्या बन जाएगा? अब क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर, ये रहा फोर्स का डायरेक्शन, यहाँ पर फोर्स एफ लग रही थी, डी का प्रोजेक्शन आपने लिया तो ये डी कॉस थीटा आया। डी कॉस थीटा को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया एफ डॉट डी, और ये आ गया डब्ल्यू वर्क डन। So this is the meaning of these two terms. They are actually different from each other. They are showing that कि you are taking a projection of force on the displacement side and the projection of displacement on the force side. So I hope कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। आपके NCERT में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप उनको ट्राई कीजिए। जो नहीं आते हैं आपको, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको क्लासेस में मुझसे पूछ लें। ठीक है,
अदरवाइज़ जो मैंने क्लास में न्यूमेरिकल करा है आप उसको क्लास नोट्स में लिखिए. पोस्ट द होमवर्क रेगुलरली ऑन द स्कूल ऐप. थैंक यू एंड जय हिंद. गॉड ब्लेस यू ऑल.